Good morning, students. Today I am going to discuss with you the rotational motion. Okay, in this chapter we have discussed about a very important term, and that is center of mass. Okay, and what is the thing with the center of mass? That it represents the system of particles. Okay. Center of mass will represent the system of particles, means the force on center of mass will be the force on system of particles. The acceleration of center of mass will be the acceleration of system of particle. Same wise, okay, velocity on center of mass will be the velocity of system of particle. Motion of center of mass will be the motion of system of particle. That is what we have discussed, and we know that how can a system of particle can be replaced by a point, and that point is known as center of mass. Okay. Today I am going to discuss rotational motion. What is rotational motion? ट्रांसलेशन मोशन आपको पता है सभी को, द शिफ्टिंग ऑफ all the points from one to another, all points. Suppose that is my object, and that object is shifted here. Okay, all the points of this object has been shifted to some another place or position, and that motion is known as translational motion. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स, यहाँ पे जैसे एक पार्टिकल ये, तो ये पार्टिकल भी यहाँ, अब ये पार्टिकल यहाँ, तो ये पार्टिकल भी यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, मीन्स ऑल द पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस सिस्टम हैज बीन shifted to some another position, and that is known as translation motion. That is known as translation motion. There are three kind of motions. And the first one is the translation motion, in which all points are shifted. जैसे कि इस डस्टर को मैं यहाँ से यहाँ लेके आ जाता हूँ, that is translation motion. इस डस्टर को मैं यहाँ लेके आया तो translation motion. इस डस्टर को मैं यहाँ लेके आया तो translation motion. इस डस्टर को मैं यहाँ लेके आया तो translational motion. ठीक है? If you have to move from a point to another point, one point to another point, yeah, point A to point B, then all the particles, all the points of the system must be transferred there. So such a motion is known as translational motion. Okay, such a motion is known as translational motion. A point से B point पे जाना है, उसके लिए सारे points को, सारे particles को shift होना पड़ेगा, and that is known as translation motion. Okay, translation में दो होता है, rectilinear and curvilinear. Rectilinear if you are moving in a straight line, rectilinear, and if you are moving along a curve, then it will be curvilinear motion. जैसे रोड से जा रहे हो तो क्या है, सीधी रोड है तो बेटा क्या है, rectilinear motion, और जैसे ही मोड़ आएगा curvilinear motion. लेकिन गए हो क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हो तो मोशन कैसा है, ट्रांसलेशन. यहां से आप बाइक उठा के चले हो, यहां पे आपको जाना है और सड़क बनी हुई है ऐसे. Okay, so shifting from A point to B point is known as translation motion. इसे translation motion कहते हैं. दो टाइप का हो सकता है, rectilinear and other is what, curvilinear. तो यहाँ से यहाँ तक जब तक आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो rectilinear, जैसे ही कर्व ट्रेस करोगे curvilinear, and फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन में rectilinear. So A से B पे जाना, that is translation motion. दूसरा होता है आपका rotational motion, that is we are going to discuss now. That the movement of points about some particular axis. Okay, movement, and movement must be circular. Circular movement of points about any particular axis, about any particular
एक्सिस। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स अबाउट सम पार्टिकुलर एक्सिस, जैसे कि इस डस्टर की देखिएगा, यहां इस डस्टर को ऐसे रोटेट करवा देते हैं। इट मीन्स ये एक्सिस है और इस एक्सिस के चारों ओर, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है पॉइंट्स का। मतलब पॉइंट का कैसे, देखिए यहां एक पॉइंट मान लेते हैं ये, यहां एक पॉइंट मान लेते हैं ये, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इसके चारों ओर। ठीक है, सो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स अबाउट एनी पार्टिकुलर एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। दो रोटेशनल मोशन हो सकते हैं इसमें, कैसे, एक तो ऐसे हो सकता है, ये एक्सिस है तो सर्कुलर मूवमेंट इसके चारों ओर, ये एक एक्सिस क्या है ये, तो सर्कुलर मूवमेंट इसके चारों। ठीक है, इस तरह से जैसे अर्थ का मोशन आप मान सकते हैं। ठीक है, अर्थ का मोशन देख लीजिए, ये सन है और यहां अर्थ जो है ये रिवॉल्यूशन कर रही है, तो जब वो रिवॉल्यूशन कर रही है तो एक्सिस कौन सा हो, ये वाला एक्सिस। ठीक है, ये वाला एक्सिस जो सन को और अर्थ को ज्वाइन करता है, ये वाला एक्सिस। मतलब सन यहां पे है, सपोज करें सन यहां पे है और अर्थ यहां पे है, तो या फिर सन यहां पे अर्थ यहां पे, तो अर्थ जो है ऐसे चक्कर लगा रही है इसके, समझ लो, सन यहां पे कर दिया आपने, ये रहा मेरा सन, छोटा हो गया, चल कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये सन है, ये मेरी अर्थ है, एंड अर्थ जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ऐसे। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट है और क्या है, ये एक्सिस है जिसके चारों चक्कर लगाया जा रहा है, सो दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। रोटेशन एक और मोशन कर रही है, दूसरा मोशन कैसे कर रही है, वो अपने ही एक्सिस के चारों, मतलब ऐसे तो मूव कर ही रही है, साथ ही साथ कैसे कर रही है, ऐसे भी कर रही है अपने ही एक्सिस पे। तो जब वो अपने ही एक्सिस पे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, तो फिर एक्सिस होगा, समझ रहे हो। देखिए, रोटेशनल मोशन मींस सर्कुलर मूवमेंट किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे, ये एक्सिस है मतलब सन वाला, तो अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है, दूसरा अर्थ क्या कर रही है, ऐसे भी चक्कर लगा रही है अपने एक्सिस पे, ऐसे देखिए इस तरह से चक्कर लगा रही है। इस तरह से चक्कर लगाने का मतलब क्या है, ये एक्सिस है और इस तरह से नहीं एक्सिस पे चक्कर लगाती है, ऐसे जा रही है। ठीक है, सो दैट इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स अबाउट एनी पार्टिकुलर एक्सिस एंड दैट मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। दैट मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। अब क्या है, अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल मोशन में एक आती है वेलोसिटी, जिसे आप बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसे आप बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसे आप बोलते हैं एंगुलर फोर्स, टॉर्क जिसे कहते हैं। एक आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। तो ये सभी चीजें हमारी आने वाली है रोटेशनल मोशन में। चीजें समझिए भाई, ये एक्सिस हुआ, ठीक है, ये एक्सिस हुआ, ओके, ये एक्सिस है, अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो एक तो हुई वेलोसिटी, क्या हुई, वेलोसिटी, और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब इसे बोलेंगे हम लीनियर वाली और इसे बोलेंगे एंगुलर वाली। जैसे तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां से किसी भी वेलोसिटी से चला हुआ, तो ये जो वेलोसिटी होती है इसकी, ये होती है लीनियर वेलोसिटी। जो आप अभी तक आप पढ़ के आए हो लीनियर वेलोसिटी होती है, ये होता है बेटा रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर आर, ये हुआ लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है। एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी होती है
the velocity with which it is revolving around, rotating about a particular axis. इस तरह and that velocity is known as omega, that is angular velocity. रेडियस वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रेडियस वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आई एम द ऑब्जर्व, मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं, ठीक है, मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं। अब सपोज करिए यहां पे कोई रनर है, भाग रहा है ऐसे, तो मैं उसके तरफ मैंने मूव कर लिया है ऐसे, ठीक है। अब वो मूव करना शुरू किया, अब मुझे इतना रोटेट करना पड़ा, ठीक है। फिर वो मूव करा, मुझे इतना रोटेट करना पड़ा, फिर वो इतना मूव कर, मुझे इतना, ठीक है। अब वो जिससे कर रहा है, जो हो रहा है, ये वाला उसका, वो तो क्या है, वो है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट चारों चक्कर लगा रहा है, और ये जो मेरे साथ हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, ये है एंगुलर वेलोसिटी, समझ रहे हो बात? वहां ऑब्जेक्ट रोटेट करते जा रहा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब वो तो इस तरह से जा रहा है, अब जो यहां ऑब्जर्वर है या मैं एक्सिस हूं, तो मेरे लिए केवल क्या है, मुझे तो केवल इतना सा घूमना है इस तरह से, ठीक है। सो ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और वो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल याद रखेंगे। आपने उस दिन पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और ओमेगा आर, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और ओमेगा आर, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर है, ये दोनों ही वेक्टर है, ठीक है, और इनका क्वांटिटी जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है भाई, रेडियस वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर और लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर, ठीक है। तो तीनों वेक्टर, ये दोनों क्या है, वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर कब आएगा, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो यहां से एक रिलेशन आपको याद रखना है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर और ओमेगा आर साइन थीटा, ओमेगा क्रॉस आर और ओमेगा आर साइन थीटा, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ओमेगा आर और ओमेगा आर साइन थीटा, ठीक है। चलिए, इस वेलोसिटी की वजह से एक एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। वो एक्सीलरेशन कौन सा होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन की वजह से एक फोर्स भी लगेगी, वो फोर्स कौन सी होती है, टॉर्क। सर्कुलर एक्सिस पे मोशन हो रहा है, मोमेंटम कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल में सभी चीजें जो है एंगुलर वर्ड जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, और मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। फोर्स बची, फोर्स को बोल दिए एंगुलर फोर्स, लेकिन एंगुलर फोर्स में दिक्कतें रह जाती है, तो वहां आप बोलते हैं उसे टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क, तो ये सभी चीजें टर्मिनोलॉजीज आपकी यूज होती है जब आप डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में। जब आप रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सभी चीजें होंगी। आर वेक्टर आपको याद रखना है, आर वेक्टर, आर वेक्टर, आर वेक्टर, हर जगह ज्यादातर केसेस में आपका आर वेक्टर लगेगा, आर वेक्टर आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए टॉर्क की बात बता रहा हूं, तो क्या है। फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ था,
तो टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एंगुलर मोशन की वजह से एक मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, और जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है, ऐसा ही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन है। वो चीजें हम देखेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे पहले टॉर्क। टॉर्क होता है बेटा रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स, रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स। टॉर्क इज द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स। किसी भी फोर्स की टेंडेंसी की वो रोटेशन कर सकती है, नहीं कर सकती है, दैट इज नोन एज टॉर्क। रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स इज टॉर्क, और इट इज डिफाइंड एज कपल ऑफ फोर्स। जोड़ा, कपल, कपल मतलब दो फोर्स लगने वाले, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स but with different line of action। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। देखिए सपोज करिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया इधर, एफ फोर्स लगाया इधर तो इधर चला गया। अब यहां पे एफ फोर्स ही लगाया इधर, तो एफ इधर लगी हुई है, एफ इधर लगी हुई है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, उसी एक्सिस पे दोनों लाई कर रहे हैं। दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये एक्सिस है, इसी पे ये लाई कर रहे हैं। अब क्या करूं मैं, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ, इधर ऊपर की तरफ एफ लगा देते हैं, और एक फोर्स लगा रहा हूं मैं एफ इधर नीचे की तरफ। एक फोर्स लगाई गई नीचे की तरफ, एक फोर्स लगाई गई ऊपर की तरफ। अब दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, कैसे हो, ऐसे। ठीक है, ये फोर्स से ऊपर ले जाएगी, से नीचे ले आए, ये वाली से नीचे ले आएगी, तो फोर्स ऐसे, और ये फिर ऐसे, और ये मोशन कौन सा हो गया है, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन है तो ये क्या हो गया है, टॉर्क लगाया। तो टॉर्क क्या है, कपल ऑफ फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बट विद दैट लाइन इज इंपॉर्टेंट, बट विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, तब जाकर टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। एफ फोर्स आप ऊपर की तरफ लगाओ, एफ फोर्स आप नीचे की तरफ लगाओ, एक ही एक्सिस पे, तो जीरो। एफ फोर्स आप यहां लगाओ, एफ फोर्स आप यहां लगाओ, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन बदल जाएंगे, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है, कपल ऑफ फोर्स है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी, लेकिन उन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, that is defined as the moment of force। moment means rotational tendency। ठीक है, it is defined as moment of force or the rotational tendency of any force, or the rotational tendency of any force। तो यहां से अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़े, देखिए मैथमेटिकली ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। तो टॉर्क जो है, टॉर्क is also a vector quantity and it is equal to r vector cross vector। r vector radius vector, and radius vector means it is the distance कहां के बीच में, it is the distance between axis of rotation and force। सपोज करिए बेटा यहां ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये सपोज करिए ये एक्सिस है, और ये इसके चारों तरफ इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये जो है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां मैंने फोर्स लगाई है। सो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज द रेडियस वेक्टर r। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सो देयर विल बी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, और टो इज इक्वल्स टू व्हाट, r f sin थीटा।
टो इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। अब आप ये देखिएगा कि किस तरह से ये इतना छोटा सा फिजिक्स, ठीक है, बहुत आसान सा फिजिक्स है, ये आपका कहाँ आप इसकी एप्लीकेशन देखते हैं? आपकी एप्लीकेशन इसकी होगी बेटा डोर्स को ऑब्जर्व करिएगा। आज अपने घर में जो भी आपके खिड़की या दरवाजे होते हैं, ठीक है, उनमें देखिए टॉर्क वाला कैसे लगा हुआ है बेटा, और मुझे एक्सप्लेन करिएगा यहाँ, ठीक है। ऑडियो सेंड कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे कि कैसे टॉर्क का ये जो है टो इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये आपके डोर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये प्लीज सोचिएगा इसके बारे में, और इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे बताइएगा किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप ये से सीख गए तो आपको टॉर्क में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें आज पढ़िए, इससे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। चैप्टर आपका बहुत बड़ा होने वाला है, तो ज्यादा भी नहीं, इसमें 10 दिन तो इसमें लगने वाले हैं, तो आप इसे आराम से इत्मीनान से पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ पीछे पढ़ाई जा रही है उसे आप एकदम से रिवाइज कर लीजिए या देख लीजिए वीडियो को, और उसी हिसाब से फिर आपका नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपको अच्छे से समझ आएगी। स्किप करके देखोगे बेटा कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जैसे ये v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा जो हमने किया था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये मैंने सेकंड चैप्टर में करवाया है, सेकंड या थर्ड चैप्टर में, जो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था, तो वहां मैंने एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी चीजें डिस्कस भी की हुई है और इनका डेरिवेशन भी किया हुआ है। तो आप वहां से इसे देखिए और फिर यहाँ से आइए और फिर पढ़ना शुरू करिए। तब तक के लिए अगर कोई डाउट आते हैं तो पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड नाइट।